Today is the second lecture of shorter to table method. Last time we have done 3 to 4 questions. Now let's solve further question. What is the question title? Use shorter to table method to determine whether the following statement form tautology or not. Okay, let's take this question. Before that, all of you remember, all these are the basic rule. Rule of conjunction. Rule of conjunction says that conjunction is true when and only when both the conjunct are true, and conjunction is false when either of the conjunct is false or possibly both the conjunct are false. That means conjunction is true when and only when both the conjunct are true. मैं क्या बोल रहा हूँ? और आप ध्यान से देखो कि conjunction is true when and only when both the conjunct are true means क्वेश्चन में अगर इधर true दिखता है तो आपको immediately ये रूल अप्लाई करना है. Conjunction is true when and only when both the conjunct are true. Okay, but conjunction is false. There are 3 cases. That's why don't apply rules because the name of this topic is shorter to table method. Okay, just revise करते हैं immediately. Conjunction is true when and only when both the conjunct are true. Otherwise it is false. Disjunction is false when and only when both the disjunct are false. Otherwise it is true. Material implication is false when antecedent is true and consequent is false. Otherwise it is true. In case of material equivalence. Okay, material equivalence is true when both the component have same truth value. True true होता है तो भी true लिखना है, false false होता है तो भी true लिखना है. Okay, and rule of negation तो very simple है, all of you know that. Now let's take this question. Important question है आज के lecture में, ध्यान से देखना. Shorter to table. Now here shorter to table method is always based on indirect method. It is also called indirect method. It is based on reductio ad absurd method. अभी लास्ट टाइम मैंने बताया था हाउ टू स्टार्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, व्हिच इज द मेन कनेक्टिव यू हैव टू डिसाइड. इसमें मेन कनेक्टिव कौन सा है? देयर आर मेनी कनेक्टिव बट द मेन कनेक्टिव इज दिस हॉर्सशू. ओके, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज योर राइट हैंड साइड. मेन कनेक्टिव इज हॉर्सशू. और कहां से स्टार्ट करना है? बाय एज्यूमिंग फॉल्स, जैसे कि मैंने लास्ट प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. नाउ मटेरियल इंप्लीकेशन इज फॉल्स. दिस इज आवर एजम्पशन. दिस इज कॉल्ड रिडक्शन एंड एब्सर्ड मेथड. Material implication is false, तो फिक्स आंसर आपके सामने है. Material implication is false when and only when antecedent is true and consequent is false. So what is antecedent? See that the antecedent of this left hand side, देखो left hand side antecedent में main connective is this. Okay, ब्रैकेट है यहाँ पे. Main connective is this dot. तो material implication is false when antecedent is true and consequent is false. This is first step. देख लो, material implication is false when antecedent is true and consequent is false. Where you write this true? जरा ध्यान से देख लो, main connective के नीचे and consequent is false. Here the main connective यहाँ पे लिखा है कल के नीचे. First step is over. Now this is false, so its negation is true. Simple rule है, rule of negation. Second step is over. Right hand side हो गया complete. Now let's continue left hand side. कंजंक्शन इज ट्रू, जहां पे मैंने एरो लिखा है दिस दिस एंड दिस, ये रूल दिखता है तो इमीडिएट अप्लाई करो. ओके, तो कंजंक्शन इज ट्रू, ऑल ऑफ यू नो दैट कंजंक्शन इज ट्रू व्हेन एंड ओनली व्हेन बोथ द कंजंक्ट आर ट्रू. नाउ कंजंक्शन इज ट्रू व्हेन एंड ओनली व्हेन बोथ द कंजंक्ट आर ट्रू. तो हियर कंजंक्ट, फर्स्ट कंजंक्ट एंड सेकंड कंजंक्ट. कंजंक्शन इज ट्रू व्हेन एंड ओनली व्हेन बोथ द कंजंक्ट आर ट्रू. तो लेफ्ट हैंड साइड में मेन कनेक्टिव इज हॉर्सशू. Here you have to write true and right hand side here true. Okay, this is third step. Third step is over. ध्यान से देख लो बराबर, ठीक है. Now we get this answer. Now material implication is true. We want to solve this bracket. लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है देख लो. Material implication is true. तो material implication is true, true, true. There are 3 cases. That's why don't apply this rule because name of this topic is shorter to table method. शॉर्टर टू टेबल मेथड में एज फार एज पॉसिबल एक सिंगल रो में हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. नाउ मटेरियल इंप्लीकेशन इज ट्रू, 3 केसेस है. दैट्स व्हाई डोंट अप्लाई रूल्स. नाउ यू हैव टू अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड. व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ p? p का ट्रूथ वैल्यू ऑलरेडी 2 आ चुका है, तो यहां पे मैंने ट्रू रिप्लेस किया. रिप्लेसमेंट मेथड अप्लाई कर लो, रूल अप्लाई नहीं करेंगे. नाउ p इज ट्रू, तो p इज ट्रू मैंने रिप्लेस किया है. ट्रूथ वैल्यू ऑफ q इज ट्रू. This is true. This is the 5th step. Then true है तो its negation is false. This is 6th step. That means मैंने क्या किया है? Since there are 3 cases, that's why don't apply rule. We replace truth value of p and q. Then we solve this bracket. ये हमने bracket solve किया. Now you have to check whether it is correct as per rule or not. Check.
material implication shows true and antecedent is true and consequent is false. So all of you know that when antecedent is true and consequent is false, तो this must be क्या होना चाहिए? False. देखो मैंने पहले ही बता दिया, material implication must be false whenever antecedent is true and consequent is false. तो जब ये true and false है तो बीच में false आना चाहिए. तो there is a inconsistency in step number 436. That means हमने क्या किया? By replacing truth value, we solve this part. But we get inconsistency. That means my assumption of false is incorrect, and false is incorrect means it is tautology. So what you have to write in the exam? ऐसा लिखना है आपको एग्जाम में. There is inconsistency in step number. कौन सा स्टेप में inconsistency है? 4, 3, 6. आप स्टेप नंबर 3 भी बता सकते हो. There is inconsistency step number 4, 3, 6. Therefore, our assumption of false is wrong. Yeah, incorrect. And false is wrong, incorrect. That means, therefore, given statement form is false is wrong means true, true means is tautology. This is the final answer. Okay, तो very simple question था. मैंने बार-बार रिपीट किया आपको. यहाँ पे जब 3 केसेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है तो मैं रूल नहीं अप्लाई करता हूँ और ट्रूथ वैल्यू रिप्लेस करके वो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं. बट एट द एंड यू हैव टू चेक वेदर दिस इज करेक्ट एज पर रूल और नॉट. इफ यू गेट inconsistency, then we say that my assumption of false is wrong and the given argument is tautology. Let's take next question. In this question, P horseshoe Q, horseshoe curl Q, horseshoe curl P. Okay, which is the main connective? This horseshoe is the main connective. See that this is left hand side bracket, this is right hand side bracket. Main connective is horseshoe. Okay, how you start? We assume that the given statement is false. Star लगा दिया हमने. और material implication false दिखता है तो हमेशा मैंने बोला है खुश होके नाचने का. That means you get this fixed answer. Material implication is false when and only when antecedent is true and consequent is false. So antecedent left side the main connective is this true and consequent this false. First step over. ध्यान देना बराबर. Now you have this two bracket. कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे वो आपको प्रॉपर डिसीजन लेना है. See that material implication shows true. So material implication is true, true, true. There are 3 cases. That's why don't solve this bracket. तो ये ब्रैकेट for the time being solve नहीं करना है आपको. Let's take this bracket. Here material implication is false. Yes, we get final fixed answer. Material implication false, fixed answer है. Antecedent is true and consequent is false. What is antecedent here? This curl is antecedent. Consequent false. Material implication false when antecedent is true and consequent is false. देखो मैं true कहाँ पे लिख रहा हूँ. ये second step complete. Now this is true, so its negation is false. Rule of negation. Third step, very simple. This is false, so its negation is true. Opposite answer लिखना है आपको. इस तरह ये right side bracket complete हो गया है. Now let's take this. Since material implication shows true and there are various 3 cases, that's why don't apply rules. In that case, we replace truth value. Truth value of P is true, तो P का value true replace कर दो and Q का value false replace कर दो. इसका मतलब जब cases आता है तो हम rule नहीं apply करते हैं and we replace truth value of variable. जैसे मैंने replace किया, this is number 5, number 6 step, तो ये bracket solve हो गया. लेकिन जब रिप्लेस करने के बाद अपनी नजरें इससे हटाओ मत, चेक करो whether this is correct as per rule or not. तो here what you get, antecedent is true and consequent is false, तो भी आपको बीच में true दिखता है. ओके, और होना क्या चाहिए आपको सबको मालूम है, बीच में false होना चाहिए in case of material implication. That means we get inconsistency in step number 5, 1 and 6. So once you get inconsistency, what you write? Same dialogue. There is inconsistency in step number 5 and 6. यहाँ पे step number change हो गया है. Okay, so there is inconsistency in step number 5, 1 and 6. And once you get inconsistency, that means my assumption of false is wrong.
फॉल्स एज्यूम करके हमने प्रॉब्लम शुरू किया था, लेकिन हमें इनकंसिस्टेंसी मिला, that means my assumption of false is wrong and the given statement is true. True means tautology. This is called indirect method and this is called reductio ad absurd method. Let's take new question. In this question, wage is the final connective. Okay, and always we start our question with false assumption. So we put here F symbol, put a star mark. Now disjunction is false. Again खुश होने की बात है क्योंकि disjunction is false when and only when both the disjunct are false. आपको ये जो एरो दिखता है वो रूल दिखता है तो अप्लाई करो, नहीं तो मत अप्लाई करो, ये मैं बोल रहा हूँ बार बार. ओके, now disjunction is false when and only when both the disjunct are false. So here we write false here, left hand side and right hand side is also false. Disjunction is false when and only when both the disjunct are false. Here you get this answer. Now we want to solve one of the bracket. देखना है कि कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे, डिसीजन लेना है. चेक कैसे करने का देख लो वापस. Conjunction is false. But conjunction is false, false, false. 3 cases है. That's why don't apply rule. तो ये ब्रैकेट हम लोग ने फॉर द टाइम बीइंग सॉल्व नहीं किया. लेट्स चेक दिस ब्रैकेट. मटेरियल इंप्लीकेशन फॉल्स, यस, फिक्स आंसर है. मटेरियल इंप्लीकेशन इज फॉल्स व्हेन एंड ओनली व्हेन एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स. तो फिक्स अगर विदाउट पॉसिबिलिटी वाला आंसर दिखता है तो हम लोग रिप्लेस करते हैं. मटेरियल इंप्लीकेशन फॉल्स व्हेन एंटीसीडेंट इज ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स. दिस इज सेकंड स्टेप इज ओवर. तो इस तरह राइट हैंड साइड का ब्रैकेट इजीली सॉल्व हो गया. अभी इस ब्रैकेट की ओर देखना पड़ेगा. फॉर द टाइमिंग हमने इसको सॉल्व नहीं किया था. सिंस देयर आर मेनी केसेस इन फॉल्स, ओके, दैट्स व्हाई डोंट अप्लाई रूल. तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू रिप्लेस ट्रूथ वैल्यू. हमें हमारे पास p का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है, फॉल्स, दिस इज थर्ड स्टेप, एंड वैल्यू ऑफ q, ट्रूथ वैल्यू ऑफ q, ट्रू, फोर्थ स्टेप. तो आपने क्या किया, रूल अप्लाई नहीं किया, लेकिन ट्रूथ वैल्यू आने के बाद आपने रिप्लेस किया. अभी रिप्लेस करने के बाद ये चेक करने का whether this is correct as per logic rule or not. चेक करो क्या conjunction is false when one of the conjunct is false. तो यस, conjunction is false होता है क्या, जब f और t होता है. तो यहाँ पे देख लो f और t के बीच में conjunction false है. That means क्या हुआ, लक बाय चांस रूल भी करेक्ट हो गया. मैंने तो रिप्लेस किया था, रूल नहीं अप्लाई किया था, बट आफ्टर रिप्लेसमेंट यू हैव टू चेक वेदर दिस ब्रैकेट इज करेक्ट और नॉट. तो दैट मींस यहाँ पे कोई इनकंसिस्टेंसी मिला क्या, नहीं मिला, क्योंकि f t के बीच में कंजंक्शन इज फॉल्स ही होता है. कंजंक्शन इज फॉल्स f और t के बीच में, देख लो. दैट मींस क्या हुआ, देयर इज नो इनकंसिस्टेंसी. हमने क्या किया था, फॉल्स एज्यूम करके प्रॉब्लम शुरू किया था और हमें कोई मिस्टेक, इनकंसिस्टेंसी, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिला. तो देयर इज नो इनकंसिस्टेंसी. वी हैव टू राइट हियर देयर इज नो इनकंसिस्टेंसी. थोड़ा सा डायलॉग चेंज हो जाएगा, देख लो कैसे लिखा हूं मैं. देयर इज no inconsistency in any step number. You have to write in any step number. There is no inconsistency in any step number. That means क्या हो गया, my assumption of false is correct. अभी मैं करेक्ट बोल रहा हूँ बिकॉज मैंने फॉल्स एज्यूम करके प्रॉब्लम शुरू किया था और कोई मिस्टेक, इनकंसिस्टेंसी नहीं मिला. दैट मींस माय assumption of false is correct and false is correct means not true. That's why given statement form is not the tautology. यहाँ पे not लिखेंगे. तो अभी मैं फाइनल आंसर में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ is not the tautology. आपने देखा यहाँ पे not tautology आया है और पहले tautology आया था. If you get inconsistency then tautology, और यहाँ पे no inconsistency means not a tautology. Okay, तो very important question था, ये भी बहुत अच्छा question था और आपको समझा होगा. Let's take new question. Okay, in this question again wage is the final connective. देख लो left hand side, right hand side, wage is the final connective. We start with false assumption. Now disjunction is false. Again खुश होने की बात है because we get fixed answer. Disjunction is false when and only when both the disjunct are false. ये जो मैं डायलॉग बोल रहा हूँ ये भी आपको याद रखने का है. There may be fill up type question, fill in the blanks or true false type question. Disjunction is false when and only when both the disjunct are false. So here you have to write false and false. So first step is over. बहुत छोटा सा question है, छोटा सा, very simple. Now
दिस इज फॉल्स सो इट्स नेगेशन इज ट्रू, रूल ऑफ नेगेशन मैंने अप्लाई किया, सेकंड स्टेप इज ओवर। बट हियर इन केस ऑफ कंजंक्शन इज फॉल्स, रूल देखने जाए तो देखो कंजंक्शन इज फॉल्स फॉल्स फॉल्स, देयर आर 3 केसेस, दैट्स व्हाई डोंट अप्लाई रूल्स बिकॉज़ द नेम ऑफ दिस टॉपिक इज शॉर्टर टू टेबल। मैंने रूल नहीं अप्लाई किया तो मैं क्या करता हूं, वी रिप्लेस ट्रूथ वैल्यू, ऑलरेडी वी हैव ट्रूथ वैल्यू ऑफ p, p इज ट्रू बोल रहा है तो जस्ट रिप्लेस कर दो सब जगह p की जगह ट्रू, थर्ड स्टेप एंड फोर्थ स्टेप। लेकिन रिप्लेस करने के बाद अपनी नजरें मत हटाओ और चेक करो वेदर दिस इज करेक्ट एज पर रूल। तो रूल में ऐसा होता है क्या, कंजंक्शन इज फॉल्स होता है क्या जब दोनों साइड ट्रू होता है? नहीं। मैं कितनी बार आपको डायलॉग बोल चुका हूं, कंजंक्शन इज ऑलवेज ट्रू when and only when both the conjunct are true। that means यहाँ पे true है तो इधर true दिखना चाहिए था, लेकिन इधर false है, इसके लिए inconsistency बोला जाएगा, क्योंकि मैंने कुछ inconsistency हमने जानबूझ के नहीं लाया, हमने तो truth value replace किया तो हम लोग को inconsistency मिला। तो हमारा डायलॉग क्या होगा, what is your final conclusion decision procedure method में, okay, if there is an inconsistency in step number 3, 1 and 4, that means my assumption of false is incorrect and the false is incorrect, that means it is a tautology। तो यहाँ पे फिर से आंसर है कि there is inconsistency in step number so and so, you have to write like this, there is inconsistency in step number 3, 1, 4, that means जैसे inconsistency आया तो हम लोग लिखते हैं my assumption of false is incorrect या wrong and given statement form is tautology लिखेंगे, tautology, this is the final answer। so there is an inconsistency in step number 3, 1, 4, that means my assumption of false is wrong and false is wrong means it is true and hence it is tautology। ऐसा स्वीट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते हैं कभी भी, तो ऐसे करने का है, तो आपको मैंने परफेक्ट मैंने बताया। लेट्स टेक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मजा आ रहा होगा सभी क्वेश्चन करने का, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। इन दिस क्वेश्चन again you have to decide which is the main connective, see that this and this, main connective is again this horseshoe, we start with false assumption, okay, और material implication is false। अभी तक हम लोग ये सब सिंबल वाले क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें horseshoe, wedge और डॉट दिखाई देता है, और मेन कनेक्टिव में horseshoe और wedge ही आ रहा है बार बार, और horseshoe और wedge मेन कनेक्टिव में आता है तो हमें एक फिक्स रूल दिखाई देता है, material implication is false when and only when antecedent is true and consequent is false। what is antecedent here, this wedge, antecedent is true and consequent is false, so this is right hand side, but right hand side का main connective is curl है, तो where you write this false symbol, ये जो लिखा है material implication false when antecedent is true and consequent is false, where you write here, ये ध्यान रख देना, important step है ये। now here we write false, तो its negation is क्या है, जैसे यहाँ पे false तो its negation is true, तो we write this true inside this bracket, यहाँ पे हम अंदर enter हो जाएंगे, this is your second step। देख लो कर्ल के नीचे false है, कर्ल के नीचे false है तो its negation is true, तो its negation is true where you write this true here inside this bracket, okay, main connective में। तो इस तरह हमारा second step complete हो गया है। now conjunction, अभी आपके पास दो ब्रैकेट है, this bracket and this bracket, आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व करेंगे। डिसजंक्शन इज ट्रू, क्या ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे? नहीं, क्योंकि डिसजंक्शन इज ट्रू 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 ऐसे 3 केस चल रहा है, इसके लिए नहीं अप्लाई करेंगे। मैं जानबूझ के इस तरह आपको स्टाइल से बताता हूं जिससे आपको पता चल जाएगा। डिसजंक्शन इज ट्रू, देयर आर 3 केसेस because disjunction is true when either of the disjunct is true or possibly both the disjunct are true, that's why don't apply rules once you get केसेस आता है तो अप्लाई मत करो, ओके। तो अभी आपके पास राइट हैंड साइड वाला ब्रैकेट देखना है। कंजंक्शन इज ट्रू, यस, फिक्स आंसर है, कंजंक्शन इज ट्रू व्हेन एंड ओनली व्हेन बोथ द कंजंक्ट आर ट्रू, तो वी राइट हियर ट्रू हियर ट्रू। थर्ड स्टेप हो गया, मींस दोनों ब्रैकेट में से कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व करना है हमने ये डिसाइड किया। अभी आपके पास ये ब्रैकेट सॉल्व करने का तरीका मिल गया है, क्योंकि आपके पास ट्रूथ वैल्यू है, p इज ऑलरेडी ट्रू, तो रिप्लेस करो, दिस इज फोर्थ स्टेप, एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ q इज ट्रू, तो रिप्लेस किया। तो अभी मैंने रूल नहीं अप्लाई किया, रूल की ओर देखा ही नहीं, हमने रिप्लेस किया, और रिप्लेस करने के बाद आपको चेक करने का क्या ऐसा होता है
disjunction is true when both the disjunct are true, तो yes disjunction is true when both the disjunct are true. That means हमने replacement करने के बाद चेक किया तो भी रूल प्रॉपर अप्लाई होता है. That means again यही है, there is no inconsistency in any step number. यहाँ पे आपको क्या लिखना है? There is no, मैं यहाँ पे no लिख रहा हूँ, inconsistency, there is no inconsistency in any step number. थोड़ा शॉर्टकट में लिखता हूँ, जरा ध्यान से देखो. There is no inconsistency in any step number. That means my assumption of false is क्या हो गया? Correct. False assume करके हमने प्रॉब्लम शुरू किया था और inconsistency नहीं मिला. That means my assumption of false is correct. And false is correct means given statement form is not a tautology. इस तरह आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है और अच्छा स्टेप्स था इसमें, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट था. यहाँ पे मेन कनेक्टिव कल था, वो एक नोटिस करना था. और यहाँ पे हमने कौन सा ब्रैकेट पहले सॉल्व किया वो आपको ध्यान से सोचना है और उसके बाद आपको कैसे चेक करने का कि इनकंसिस्टेंसी है कि नहीं वो मैंने बताया. तो ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना आपको, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट टाइम इन दिस क्वेश्चन द मेन कनेक्टिव इज ट्रिपल बार. पहली बार आपको मेन कनेक्टिव में ट्रिपल बार देता है. देख लो, अभी तक मेन कनेक्टिव में ट्रिपल बार नहीं आया था. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बोल सकते हैं इसको. इंपॉर्टेंट मतलब थोड़ा सा ट्रिकी है, इंपॉर्टेंट का मीनिंग ऐसा है. ओके, हाउ यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन? ऑलवेज वी एज्यूम दैट गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. जैसे आप यहाँ पे फॉल्स एज्यूम करके प्रॉब्लम शुरू करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में केस शुरू हो जाता है. ध्यान से देखो, मटेरियल इक्विवेलेंस इज फॉल्स. Material equivalence is false. False. There are already two cases. Starting step में ही आपको केस मिल गया तो आपको दो केस सॉल्व करना ही पड़ेगा. Now material equivalence is false. False. So there are two cases. First क्या है? True false and the second case false true. तो here we write true false and false true. तो देखो कैसे लिखा हो. There are two cases. तो first time ही two case है. That's why we write here case one. Case one is true, false, then leave one or two line and then case two. ऐसा आपको एग्जाम में सॉल्व करना है. दोनों केस समझाने का है. बराबर देख लो. बराबर मटेरियल इक्विवेलेंस इज फॉल्स. मटेरियल इक्विवेलेंस इज फॉल्स. फॉल्स. देयर आर टू पॉसिबिलिटी, ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू. तो ट्रू फॉल्स एंड फॉल्स ट्रू. मैंने ट्रू किधर लिखा है? Here left hand side where true means main connective is not curl is the final answer, and right hand side main connective is dot. So true, false, and the second possibility is false, true. So second possibility means second case false, true. Now we have to check these cases. और यहाँ पे मैं रिजल्ट लिखता हूँ. जरा ध्यान से देखना इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाएगा. ओके, दिस इज नॉट फाइनल कंक्लूजन, दिस इज ओनली रिजल्ट ऑफ केस वन एंड केस टू. अभी मैं वापस बोल रहा हूँ, हम केस वन सॉल्व करेंगे. और सबको मालूम है कि अगर क्रॉस सिंबल आता है, क्रॉस मतलब इनकंसिस्टेंसी आता है, तो हम लोग क्या लिखते हैं? टोटोलॉजी. सपोज केस वन सॉल्व किया और आपका आंसर टोटोलॉजी आया तो आपको केस टू भी सॉल्व करना पड़ेगा और उसका भी आंसर टोटोलॉजी आया तो फाइनल आंसर टोटोलॉजी बोलेंगे. सेकेंड पॉसिबिलिटी, सपोज केस वन सॉल्व किया और फाइनल आंसर नॉट टोटोलॉजी आया तो डोंट सॉल्व केस टू. इसका मतलब नॉट टोटोलॉजी आएगा तो आपको केस नहीं सॉल्व करने का, दूसरा केस और डिसीजन ले लेने का है नॉट टोटोलॉजी. मैं फिर से बता रहा हूँ, आपको केस वन केस टू सॉल्व करना है कि नहीं वो डिपेंड करता है. अगर केस वन सॉल्व किया और टोटोलॉजी आया तो आपको केस टू भी सॉल्व करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा वेदर इट इज टोटोलॉजी और नॉट टोटोलॉजी. अगर केस वन इज टोटोलॉजी, second case is tautology, final answer tautology. Case 1 is tautology, case 2 is not tautology, final answer is not tautology. If case 1 is not tautology, don't solve case 2, final answer is not tautology. मैं ये बोल रहा हूँ, इसके लिए आपको ध्यान से प्रॉब्लम सॉल्व करने का है. ओके, नाउ चलो कैसे सॉल्व करेंगे. चेक करने जा रहा हूँ केस 1. और टोटोलॉजी और नॉट टोटोलॉजी तो सबको ही मालूम है कब आता है. जब इनकंसिस्टेंसी मिलेगा तो टोटोलॉजी, नो इनकंसिस्टेंसी मींस नॉट टोटोलॉजी. Let's take case one. Now see that first case में मैंने solve किया first step, तो यहाँ पे मैं first step लिख रहा हूँ. ये case मैं ले रहा हूँ. Material equivalence is false, then first component is true and second is false, तो true false यहाँ पे लिखा है.
Now we want to solve this case. तो आप लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट सॉल्व करना पसंद करेंगे कि राइट हैंड साइड में आपको आगे बढ़ने का है? तो चलो देखते हैं. नाउ यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे कि केस 1 में क्या है, इफ दिस इज ट्रू तो इट्स नेगेशन इज फॉल्स. उल्टा देखो, ये दिस इज ट्रू तो इट्स नेगेशन इज फॉल्स. तो ये मैं लेफ्ट हैंड साइड रूल अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि प्रॉपर रूल दिखता है यहाँ पे. ये ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूँ. तो नंबर 2 इस तरह से रूल ऑफ नेगेशन अप्लाई किया. नाउ डिसजंक्शन इज फॉल्स. अभी केसेस ऑलरेडी चालू हो गया है. केसेस के अंदर केसेस नहीं आना चाहिए. ऑलरेडी ये केस स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी ये मटेरियल इक्विवेलेंस वाला क्वेश्चन था. तो जिस क्वेश्चन में मेन कनेक्टिव में ट्रिपल बार और डॉट होगा, तो वहां पे फर्स्ट स्टेप में केसेस शुरू हो जाते हैं, और उसके अंदर केसेस के अंदर केसेस नहीं आना चाहिए. अभी हम और कोई एक्स्ट्रा लाइन में सॉल्व नहीं करना चाहते हैं. तो चलो देखते हैं. रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से देखना. दिस इज ट्रू तो इट्स नेगेशन इज फॉल्स. तो ये मैंने रूल अप्लाई किया. अभी ओनली प्रॉपर रूल ही दिखना चाहिए. Disjunction is false. तो yes, disjunction is false when and only when both the disjunct are false. So this is false and this is false. First step. इस तरह ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया. Right hand side. Since conjunction is false, तो conjunction is false, false, false. There are 3 cases. Already cases वाला क्वेश्चन है और हम cases में नहीं फंसना चाहते हैं. तो don't apply rules. You have to replace truth value. और ऐसे भी आपको मालूम है, जब आपको केसेस आते हैं तो आप रूल नहीं अप्लाई करते हैं और ट्रूथ वैल्यू रिप्लेस करते हैं. ट्रूथ वैल्यू ऑफ p इज फॉल्स. तो हियर p इज फॉल्स. नंबर 4 एंड q इज फॉल्स. रिप्लेस कर दिया. नंबर 5. इफ दिस इज फॉल्स तो इट्स नेगेशन इज ट्रू. रूल ऑफ नेगेशन. नंबर 6 एंड दिस इज फॉल्स तो इट्स नेगेशन इज ट्रू. नंबर 7. जब आप इस तरह ट्रूथ वैल्यू रिप्लेस करके सॉल्व करते हैं, तो एट द एंड यू हैव टू चेक दिस ब्रैकेट इज परफेक्ट, करेक्ट और नॉट. चलो चेक करते हैं. क्या कंजंक्शन इज फॉल्स होता है व्हेन लेफ्ट हैंड साइड फर्स्ट कंजंक्ट इज ट्रू एंड द सेकंड कंजंक्ट इज ट्रू? क्या बोल रहा, देख लो. फर्स्ट कंजंक्ट हियर शोस ट्रू, ट्रू एंड राइट हैंड साइड ट्रू. तो बीच में कंजंक्शन नेवर बी फॉल्स, बिकॉज़ कंजंक्शन इज ऑलवेज ट्रू व्हेन एंड ओनली व्हेन बोथ द कंजंक्ट आर बोलो ट्रू. तो देयर इज अ इनकंसिस्टेंसी इन स्टेप नंबर 6, 1 एंड 7 के बीच में इनकंसिस्टेंसी आया. दैट मींस माय assumption ऑफ फॉल्स इज क्या हो गया, इनकरेक्ट, एंड द फॉल्स इज रॉन्ग मींस टोटोलॉजी. या तो बाहर भी कर लो, क्रॉस सिंबल आया, इनकंसिस्टेंसी तो टोटोलॉजी. तो फर्स्ट केस क्या बता रहा है, इट इज अ टोटोलॉजी. ओके. और जब टोटोलॉजी आया तो आपको इमीडिएट आपको सेकंड केस भी सॉल्व करना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि वेदर इट इज अ टोटोलॉजी और नॉट. इसके लिए मैं केस 2 सॉल्व करने जा रहा हूं. तो अगेन वी सॉल्व दिस पार्ट. ओके. नाउ हियर अगेन ये केस 2 सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे चेक करना है कि टोटोलॉजी है तो सेकंड भी टोटोलॉजी है कि नॉट टोटोलॉजी. देन द फाइनल डिसीजन लेंगे हम लोग. ठीक है. तो चलो देखते हैं क्या हम सेकंड केस इजीली सॉल्व कर सकते हैं. देखते हैं. मटेरियल इक्विवेलेंस इज फॉल्स. दिस इज फॉल्स, दिस इज ट्रू. दिस इज योर फर्स्ट स्टेप. And if this is false, so its negation is true. This is second step, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम किया इसमें केस 1 में. लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, disjunction is true. There are 3 cases, क्योंकि disjunction is true, true, true 3 cases, इसलिए मैं ये ब्रैकेट नहीं सॉल्व करूँगा. मैं राइट हैंड साइड में जा रहा हूँ पहले. यहाँ पे conjunction is true when and only when both the conjunct are true. Conjunction is true when and only when both the conjunct are true. We write here true. इसके नीचे कल के नीचे और here true. This is your second step, third step. Third step is over. यहाँ ध्यान से देखना. ये ब्रैकेट मैं पहले क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फिक्स रूल अप्लाई हो रहा है. कंजंक्शन इज ट्रू व्हेन एंड ओनली व्हेन बोथ द कंजंक्ट आर ट्रू. इस केस 1 को मत देखो. तो इस तरह हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है. नाउ दिस इज ट्रू तो इट्स नेगेशन इज फॉल्स. दिस इज फोर्थ स्टेप. इफ दिस इज ट्रू तो इट्स नेगेशन इज फॉल्स. दिस इज फिफ्थ स्टेप. इस तरह हमारा राइट हैंड साइड ब्रैकेट सॉल्व हो गया. अभी हम लेफ्ट हैंड साइड में आना चाहते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में केसेस था. इसके लिए हम ट्रूथ वैल्यू रिप्लेस करेंगे. ट्रूथ वैल्यू ऑफ p इज क्या, फॉल्स है. दिस इज f. दिस इज 6 स्टेप एंड ट्रूथ वैल्यू ऑफ q इज ऑलरेडी फॉल्स. यहां पे भी है. दिस इज 7. आफ्टर रिप्लेसमेंट यू हैव टू चेक वेदर इट इज करेक्ट एज पर रूल. तो इट इज नॉट करेक्ट एज पर रूल एंड देयर इज एन इनकंसिस्टेंसी, बिकॉज़ disjunction is always false when and only when both the disjunct are false. But in spite of false disjunct, here disjunction shows true. That means there is an inconsistency in step number 6 to 7. Hence, the case 2 also shows that given statement is
tautology, and tautology final conclusion is tautology. Tautology or not tautology आता तो final answer is not tautology. Not tautology तो don't solve case 2, final answer is not tautology. So here you have to write conclusion. क्या लिखेंगे हम? In case 1 and case 2, case 1 and case 2 both shows that there is an inconsistency in step number 417 and 627 and the given statement form is tautology. इस तरह लिखेंगे. So there is inconsistency in step number 641 and 627. Therefore our assumption of false is क्या हो गया है? Incorrect. In both cases, for both cases. In both cases, there is inconsistency in step number 641 and 627. Or assumption of false is wrong, and the given statement form is tautology. So कि tautology, final answer is tautology. आप separate भी लिख सकते हैं. In case 1, there is an inconsistency in step number 641, 617, hence the given statement form is tautology. In case 2 also, there is an inconsistency in step number 627, hence the given statement form is tautology. Therefore the given statement form is tautology because both cases shows tautology. तो यहाँ पे ये आपको थोड़ा difficult लगा होगा. तो एग्जाम में आपको choice मिलता है. तो as far as possible you have to select sums on the basis of horseshoe and wedge. जहाँ पे horseshoe और wedge वाला क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करने का. ट्रिपल बार एंड डॉट वाले क्वेश्चन में स्टार्टिंग में केसेस आ जाता है तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है. तो ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज सॉल्व करके बताया. लेट्स प्रैक्टिस नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सी दैट थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है. देयर आर 3 वेरिएबल p, q and r. ओके, व्हिच इज द मेन कनेक्टिव? सी दैट दिस horseshoe is the main connective. This is your one bracket, this is right hand side bracket. We write here false. यहाँ से स्टार्ट करेंगे. assumption है false. Now material implication is false when and only when antecedent is true and consequent is false. हमेशा मैंने बताया कि आपको लर्न करना ही है और खुश हो जाने का है जब भी material implication is false देखेंगे. तो antecedent, what is antecedent in this connective? This dot is the antecedent. This is your left hand side and consequent is false. This is first step. Material implication false when antecedent is true and consequent is false. तो आपके पास ये आंसर आ चुका है. अभी आपको डिसाइड करने का है कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे. आप ये लेफ्ट हैंड साइड ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं. यस कर सकते हैं. कंजंक्शन इज ट्रू व्हेन एंड ओनली व्हेन बोथ द कंजंक्ट आर ट्रू. ये फिक्स रूल है. जो रूल दिखता है आपको फिक्स रूल दिखता है तो अप्लाई कर सकते हो. नाउ कंजंक्शन इज ट्रू, ये भी आप फिक्स रूल अप्लाई कर सकते हो. एंड इन केस ऑफ material implication is false when and only when antecedent is true and consequent is false. तो ये भी आप फिक्स रूल वाला कोई भी ब्रैकेट सॉल्व कर सकते हैं. अगर आप ये सॉल्व करेंगे तो material implication false when antecedent is true and consequent is false. तो ये सेकंड स्टेप इजीली कवर हो जाता है. ठीक है, लेट्स स्टार्ट दिस ब्रैकेट. कंजंक्शन इज ट्रू when and only when both the conjunct are true. तो दिस इज ट्रू एंड दिस इज ट्रू. दिस इज योर थर्ड स्टेप. ध्यान से देखना बराबर. ओके, अभी तक रूल प्रॉपर फिक्स रूल अप्लाई हो रहा है. फिक्स विदाउट पॉसिबिलिटी वाला रूल अप्लाई हो रहा है. नाउ कंजंक्शन इज ट्रू when and only when both the conjunct are true. Now we have this two bracket. ये bracket भी है और ये bracket भी है. कौन सा bracket पहले solve करना है वो decision लेना है. Disjunction is true. Disjunction is true, true, true. There are 3 cases. Don't solve this. Material implication is true. Again material implication is true, true, true. 3 cases. Don't solve this bracket. ना तो आप ये bracket पहले solve कर सकते हो, नहीं ये bracket solve कर सकते हैं. इसके लिए मैंने आपको ट्रिक क्या सिखाया था? You have to replace truth value. Now truth value replace करते करते ये पूरे सॉल्व करना है. चलो देखते हैं. Truth value of r is false. यहाँ पे आपके पास truth value of r is false दिखता है. तो मैं यहाँ पे false replace कर रहा हूँ. This is fourth step. ध्यान से देखना. But truth value of q हमारे पास नहीं है यहाँ पे. तो आप ये इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे देखना. Now this material implication is true and consequent is false. तो you get answer. देख लो. Material implication is true, true, true 3 cases, but with consequent false एक ही केस है आपके पास. तो when material implication is true and consequent is false,
तो व्हाट इज एंटीसीडेंट? एंटीसीडेंट शोज फॉल्स। इसको देखते हुए मैं यहाँ पे ये रूल लिख रहा हूँ, आंसर लिख रहा हूँ कि ये फॉल्स होना ही चाहिए एज पर दिस कंडीशन। ओके, तो यहाँ पे ये फॉल्स आया क्योंकि मटेरियल इंप्लीकेशन इज ट्रू एंड कॉन्सिक्वेंट इज फॉल्स होता है, तो एंटीसीडेंट मस्ट बी फॉल्स, दैट्स व्हाई वी कैन राइट हियर फॉल्स। मैंने रूल अप्लाई कर दिया क्योंकि यहाँ तक हमें आंसर मिल चुका था। नाउ आप चाहो तो P का भी वैल्यू रिप्लेस करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, Q का भी वैल्यू रिप्लेस करके सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं ट्रूथ वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं, देखो, क्योंकि डिसजंक्शन इज ट्रू, देयर आर 3 केसेस था, तो हम रूल नहीं अप्लाई कर रहे। ओके, नाउ डिसजंक्शन इज ट्रू, देयर आर 3 केसेस, डोंट अप्लाई रूल, वी रिप्लेस ट्रूथ वैल्यू। ट्रूथ वैल्यू ऑफ P ऑलरेडी हमारे पास P है, दिस इज 6 स्टेप। ट्रूथ वैल्यू ऑफ Q फॉल्स आ चुका है, दिस इज 7, and this is its negation is false, this is 8 step. But you have to check whether it is correct as per rule or not, क्योंकि आपने इसको सॉल्व किया ट्रूथ वैल्यू रिप्लेस करके, तो you have to check whether it is correct as per rule or not. चेक करो, disjunction shows true and first disjunct is false and the second disjunct is false. क्या ऐसा होता है कि दोनों disjunct false होता है तो बीच में true होता है? क्या नहीं होता है, क्योंकि disjunction must be false when and only when both the disjunct are false, but disjunction shows here true in spite of both the disjunct are false, hence there is an inconsistency in step number 837 and our assumption of false is wrong and the given statement form is tautology, that is you have to write. तो क्या लिखेंगे? There is inconsistency in step number, which step number? 3, especially 3, but you have to write 8, 3, 7 को हमने देखा, therefore our assumption of false is wrong या incorrect लिख सकते हो। okay, therefore given statement form is true. True means tautology. हम incorrect हमेशा लिखते हैं, तो मैं वही लिखता हूँ आपको is incorrect. Okay. So there is inconsistency in step number 837. That means my assumption of false is wrong and incorrect, and the given statement form is tautology. तो जब भी इनकंसिस्टेंसी आता है तो टोटोलॉजी क्या बोलते हैं? बिकॉज वी अप्लाई हियर रिडक्शन एंड एब्सर्व मेथड। इन दिस मेथड अपोजिट ऑफ व्हाट इज टू बी प्रूव्ड लीड्स टू एन एब्सर्विटी, देन वी टेक डिसीजन वेदर इट इज अ टोटोलॉजी और नॉट। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब चल रहे हैं। आपको ये सभी लेक्चर्स का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों को ये नॉलेज शेयर करो और सब्सक्राइब करो।